IIT Delhi graduate, BTech in Electrical Engineering। दोस्तों अंकुर जी ने यूएस में काम किया है बड़ी कंपनियों के साथ, और अंकुर जी का पैशन है रीडिंग करना। ये एक पैशनेट रीडर हैं। दोस्तों अंकुर जी कुछ कहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अंकुर जी मानते हैं लीडर्स आर ड्रिवन बाय देयर कन्विक्शंस एंड कमिटमेंट टू देयर कॉज। They focus on transforming the organizations, communities they lead, and they succeed, and that's the reason they become charismatic. दोस्तों अंकुर जी हमारे पैनलिस्ट मेंबर। तो दोस्तों अब इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं, और आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। दोस्तों इस प्रोग्राम को और रोमांचक और जबरदस्त बनाने के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर मिस्टर अरिजीत सोम को। अरिजीत, over to you. Thank you, Manish. I think that was a lot of energy that I saw there, और बहुत बढ़िया जोरदार एक वीडियो से आपने शुरुआत की। And I think first of all, I'd like to wish all of you a very happy business new year to all of you, to all our audiences here. और ये खास है आज का ये एपिसोड, ये हमारा तीसरा एपिसोड है, और ये हमने इसको स्पेशल एडिशन कहा था because it's start of a new year, and we wanted to do something special. So we've got a lineup of very strong panelists here. So we have a corporate leader, which is Debashish Majumdar, who has joined us. We also have EDCs, Sumit Bahadur and Praveen Patelia, and you also have founder EDC leader, which is Ankur Gupta. So I think that's amazing lineup today that we have for this special edition here. And I'm sure आज जब आप यहाँ से जाएंगे इस एपिसोड के बाद, बहुत अपने साथ बहुत सारी चीज लेके जाएंगे जो आपको मदद करेगी इस साल को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए, राइट? एंड दैट्स अ स्पेशल एपिसोड फॉर स्टूडियो आउटलुक, आपका दृष्टिकोण। मैं बहुत समय नहीं लूंगा और जल्दी से शुरुआत करूंगा इस एपिसोड का, इस प्रोग्राम का। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज टू देबाशीष मजुमदार जी। तो देबाशीष जी, ये पहला सवाल आपके लिए है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, जॉइनिंग अस। तो Debashish ji, Ankur ji, Sumit ji, Praveen ji, thank you for taking us time out today and joining us here for this event. So Debashish ji, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि sir, you've been in this organization for the last 18 years, more than 18 years, I would say, right? It's been more than 18 years, right, sir? Yeah, it's 18 year running actually. Yeah, 18 years running, right? So it's been more than 18 years. So you would have seen Amway in certain way when it started off, or maybe when you join in. And today, maybe you find it a little different. What is that difference that you see? So how was that Amway when you joined, and what has so changed over these 18 years that you see? And I also wanted to add extension to that. So there is this A70 vision that we're talking about, and we're talking about going 10x. So how do you envision this A70, vision that we have, rather, or A70 mission that we have? So over to you, sir. So thank you so much, Arijit. In fact, I would first like to thank our panelists, because being a part of the company, I'm really grateful to Ankur, to Sumit, and to Praveen ji that they have taken out time. And this series that we have started is basically to highlight and share with the larger audience that how is the company shaping and what are the things. So we have taken a couple of themes earlier also, whether it was women entrepreneurship or it was talking about the next generation of leadership, and today it is a special edition of this 10x. So first of all, thank you so much for being a part of this entire thing. I mean, if I talk about the changes, yes, it is the 18th year running. मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मैंने ना ये बिजनेस, जैसे आप सबने ज्वाइन किया, मैंने भी उस बिजनेस को 2003 में ऐसे ही ज्वाइन किया था, जहां पे मुझे ज्यादा पता नहीं था बिजनेस के बारे में, एमवे के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। लेकिन जैसे आप लोग 3% लेवल पे ज्वाइन करते हैं, मैंने भी वैसे ही 3% लेवल पे ज्वाइन किया, एज अ ट्रेनिंग टीम में ज्वाइन किया। लेकिन जैसे हमारे बिजनेस की कहावत है और बोला जाता है कि अगर आप अपने अपलाइंस की बात को बड़े ध्यान से सुनते हो, वो जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं, आप अपने को तैयार करते हो, I think I did exactly the same. I used to work very closely with my appliance, and I used to work in the field to understand कि मैं distributors के साथ मिलके कैसे काम करूं, and then
suddenly I realized that I was changing pins. जैसे आप लोग पिन चेंज करते हैं, वैसे I was changing my pins. So from a 3%, I would say like a trainer, I became a regional training manager. फिर वहां से grow करके I went as an area manager. So I worked in North, I worked in East, I worked back again in North as an area manager, and then I went to South. RBDM का रोल मैंने किया नॉर्थ में, और उसके बाद मैं साउथ में एज अ सैम गया. सैम नॉर्थ में भी था, मैं डॉक्टर ब्रेज का मेरे पास अकाउंट था. उसके बाद साउथ में गए, बहुत सारे लीडर्स के साथ काम किया. ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 17-18 years, I think I have seen a lot of things change. I mean, I remember the days in Okhla जब मंथ एंड हुआ करता था तो 2 दिन पहले से लाइन लगनी शुरू होती थी और अगले दिन दोपहर तक लाइन लगी रहती थी. लोग ऑलमोस्ट 50-55% बिजनेस जो है वो हमारा मंथ एंड वाले दिन ही आया करता था और अगले दिन तक चला करता था. आज वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है. आज हम लोग 15 से 20% बिजनेस आखिरी दिन में आता है, लेकिन उसके अलावा 30 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था. आज लगभग 170 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है. उस जमाने में 90% जो हमारा पिकअप से प्रोडक्ट जाता था और 10% के करीबन होम डिलीवरी से हुआ करता था. आज अगर मैं प्री पैंडेमिक की बात करूं तो इट वाज अ रेशियो ऑफ 60-40, मतलब 40% हमारा होम डिलीवरी जाता था, 60%. और अगर मैं पोस्ट पैंडेमिक की बात करूं तो आज वो ऑलमोस्ट 80-20 हो गया है. ऑलमोस्ट 80% हमारा बिजनेस जो है वो मूव कर गया है इनटू डिजिटल, विच इज होम डिलीवरी नेटवर्क पे, और 20% हमारा रह गया है पिकअप के ऊपर. अगर मैं चेंजेस की बात कर रहा हूं तो वन थिंग विच आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इज दैट आपका कोर नहीं चेंज होना चाहिए. And I think that is what I have seen. And one thing which I very strongly believe, और क्यों मैं कई बार मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि why are you there with this company for the last 18 years? I mean, इससे पहले मैं 2 और कंपनीज में काम कर चुका हूं, लेकिन वहां पे मेरी स्टेंट 4 साल 5 साल से ज्यादा की नहीं थी. लेकिन why do you think that you are in this company for the last 18 years? तो मैं सिर्फ एक चीज मानता हूं, और उस दिन जब मैं अंशु सर से बात कर रहा था तो उनका भी यही थॉट था कि your values should match with the values of the company that you work. And if that happens, I think that is the best state to be in. और मैंने एक चीज नोटिस की कि इतने सारे चेंजेस हुए एमवे के अंदर ओवर द पास्ट 21 years एमवे ने कहा, लेकिन जो कोर है उसका वो चेंज नहीं हुआ. और अरिजीत, जैसे आपने पूछा कि A70 का हमारा गोल क्या है, हमारा जो टारगेट क्या है, वो क्या हमने लिया है, अपने लिए क्या विजन लिया है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि द पर्पस हैज रिमेन्ड द सेम. जो पर्पस रहा है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का वो था हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स. आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने सुना था. इसमें सिर्फ हमने एक छोटा सा चेंज किया है. आज हम कह रहे हैं हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दियर लाइव्स, बेटर एंड हेल्दियर लाइव्स. तो ये हेल्दियर वर्ड हमने इसमें चेंज किया. बाकी हमारा पर्पस रिमेन्स द सेम. Our values remains the same, which is family, freedom, hope and reward. इसमें कोई चेंज नहीं आया. एक गार्डरेल जो हम यूज करते हैं वो हम डेफिनेटली ये यूज करते हैं कि हम किसी भी हालत में लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को हम बहुत ही सैंक्रोसैंक मांगते हैं, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम उसको लेके चलेंगे. और हम जब भी कोई भी काम करेंगे हम एबीओ को सेंटर में रखेंगे, यानी एबीओ के साथ मिलके, एडीएस के साथ मिलके ही हम उस काम को मार्केट में लॉन्च करेंगे. तो आई थिंक दिस वाज द कोर जिसके चारों तरफ बाकी सारे चेंजेस आए. चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम मार्केट को ना देखें, अगर हम मार्केट के हिसाब से चेंज ना करें. अभी रिसेंटली आई वाज स्टडीइंग दैट व्हेन एंड्रॉइड केम टू इंडिया, or rather when Android came in, the first company it approached was Nokia, and Nokia said a no to it कि नहीं, Android शायद नहीं चलेगा. And today we all know what is the situation there. Where is Nokia, where is Android? And there are so many names. You have names like HMT, you have names like Motorola, you have names like Kodak. I mean, these were not bad companies. They never had bad products, or they never had a bad plan. But the only thing is, जब मार्केट चेंज हो रहा था उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से चेंज नहीं किया. एंड टुडे वी हार्डली हियर द नेम ऑफ नोकिया और a Motorola or a Kodak or a HMT. And I think that is very important in Amway, and that is what I see as the key strategy of A70. A70 का हमने जो strategy रखा है वो बड़ा clear है. Unleash entrepreneurship with social commerce. That's the tagline. The core remaining the same, the purpose remaining the same. Purpose आज तक change नहीं हुआ, पिछले 60 साल में वो कभी change नहीं होगा. और जो vision हमने रखा है उसमें हमने कहा है कि we are going to unleash entrepreneurship.
हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग पीपल लिव बेटर एंड हेल्दियर लाइव्स, लेकिन किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हम कम्युनिटी ऑफ एंगेज्ड एंड लॉयल कस्टमर्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर जो कि लॉन्ग टर्म में चले। दिस इज द गोल ऑफ A70 यूजिंग कोर प्लस। हम बात कर रहे हैं सोशल कॉमर्स की, यानी हम अपने पैशन को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें। दैट इज द गोल ऑफ A70। और जो फोकस हमने रखा है, जो आज हमारे अपेरेंटली आज हमारे प्रोग्राम का थीम है 10x। हमारा जो विजन है वो ये कह रहा है कि अगले आने वाले 10 साल में, आने वाले कुछ सालों के अंदर जिसकी जर्नी हम शुरू कर चुके हैं, हम सारी चीजों को 10x सिंपलर कर देना चाहते हैं अपने एडीएस के लिए, अपने कस्टमर के लिए। यानी इट शुड बी इजियर फॉर अ न्यू एबीओ टू अक्वायर एंड रिटेन अ कम्युनिटी ऑफ एंगेज कस्टमर्स। दैट इज द टैगलाइन दैट वी आर फॉलोइंग। अब जब हम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, जब हम एडीएस की बात कर रहे हैं, हम 10x इजियर करने की बात कर रहे हैं, तो एक तो होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए जो कि 10x इजियर हो रिटेल करने के लिए, कुछ ऐसे प्रोसेसेस आए जो कि 10x इजियर हो एबीओस को समझने के लिए, आप कनेक्ट कर सके 10x फास्टर कंपनी के साथ, आपकी होम डिलीवरी 10x फास्टर हो जाए, आप जिस तरीके से आज अपना वेबसाइट यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वो 10x इजियर हो जाए। आई थिंक दैट इज व्हाट द थीम ऑफ A70 इज। अगले 10 साल में हम ये अचीव करना चाहते हैं। और हम ये करेंगे कैसे? हम अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। और हमारा जो आज का स्ट्रेंथ है, इफ आई टॉक अबाउट आवर स्ट्रेंथ, इट इज वेरी क्लियरली कमिंग आउट in nutrition and wellness, and we are going to build on this particular category. We are going to expand on this category. Of course there is going to be categories like beauty and home care and personal care, but we are going to build on this strength, and we, along with the partnership, we are going to take it forward. So Arijit, I would like to say that this is what the A70 strategy is, and the changes that I feel which was there in 2003 and the changes that I feel today in 2020, I think it is very evident that we are, as an organization, we had a vision very, very clearly set in front that we are going to move from offline to online now, because that is where the entire market is moving. If you look into the pandemic situation, it forced us to do it maybe a year earlier. Maybe we would have started it in 2021, but we have started it already, and you would see a lot of changes. बहुत सारे चेंजेस कंपनी की तरफ से होंगे जो आप देखेंगे, जो कि इन पूरे प्रोसेस को ऑफलाइन टू ऑनलाइन, फिजिकल टू डिजिटल को हम बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे। और A70 का जो हमारा विजन है, जो कि अनलीशिंग द एंटरप्रेन्योरशिप टू सोशल कॉमर्स एंड ऑफलाइन टू ऑनलाइन, आई थिंक उसको हम लेके आगे जाएंगे। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई think about A70, and that is what my thoughts are about the future of the business in Amway. Over to you, Arijit. Thank you so much, Devashish ji, because what you really did is set the tone for today. And when we talk about A70 and the 10x business, or 10x of everything, it is not just business, about services and every support that we want to extend. And that really sets the tone for today. And like they say, change is the only constant, because moving always, it's very important that we keep changing so that, we are ahead in the game. So thanks for setting the tone for us, Devashish ji. Well, we'll move on to our next panelist, and my next question, अंकुर जी, आपके लिए है. अंकुर जी, हमने कोर प्लस को लॉन्च किया था, ऑफ कोर्स इस साल, अभी जो साल खत्म हुई है, बट खास करके फरवरी से हमारी CSI जो है तब लॉन्च हुई बेसिकली. तो ओवरऑल जो प्रोग्राम था इन फुल, हमने इस साल इसे लॉन्च किया, और इसे हम कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा जल्दी और लगातार. तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर सारे ऑडियंस जो यहाँ से ये जानना चाहेंगी कि एक बड़ा इम्पैक्ट, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की करंट इनकम के ऊपर जब वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. तो मेरा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है आपके लिए. दूसरा सवाल ये है कि सर, जो कोर प्लस है, बिकॉज हम अभी A70 की बात कर रहे थे और 10x बिजनेस की बात कर रहे थे, तो उसे जोड़ते हुए जब हम बात कर रहे हैं कोर प्लस को, कोर प्लस एक incentive program नहीं है. ये I think is something that also changes the way you build the business, actually, business building pattern. So क्या आपको अपने टीम में, या आप जब देख रहे हैं आसपास, do you see any change, or do you foresee any change because of Core Plus, sir? Very nice. Thank you, Arijit. Hello, everyone. Good. It's great to see you all.
आई नो यहाँ पर कई हजार लोग हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और तरु और मैं, हम लोग बैंगलोर में रहते हैं। मैं सॉफ्टवेयर में काम करता था पहले, और तरु एचआर में थी, और कई सालों से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं देबाशीष की बात अभी सुन रहा था, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। एक एक वर्ड जो देबाशीष ने बोला, इट वाज जस्ट सो रेलेवेंट। और आई कैन क्लियरली सी, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इस बिजनेस में कि जो विजन कंपनी लेकर चल रही है A70 के लिए, वो ना सिर्फ एक विजन है, बल्कि उस विजन के लिए वो एक्शन भी कर रहे हैं। और कोर प्लस मेरे ओपिनियन में उस एक्शन प्लान का सबसे बड़ा पीस है। जब कोर प्लस का डिस्कशन हो रहा था 2 साल पहले आज से टॉप लीडरशिप के साथ, तो जब हमने पहली बार कोर प्लस के बारे में सुना तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ये तो हम बहुत सालों से चाहते थे। क्योंकि जैसे अभी अरिजीत ने कहा ना कि हम ज़्यादा पैसा जल्दी और लगातार लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। मेरा ये रियली बिलीफ है कि कोर प्लस से ये पॉसिबल है, लेकिन ये अपने आप नहीं होने वाला है। क्योंकि एज लीडर्स हमें एजेंट ऑफ चेंज बनने की ज़रूरत है। मतलब कि एक नया ऑफर आता है या एक नया प्लान आता है, उससे बिजनेस अपने आप बदलता नहीं है। वो तभी बदलता है जब जो लीडर्स हैं वो समझना शुरू कर देते हैं कि इसको लेवरेज कैसे किया जाए। और इन द पास्ट हम बहुत बार ये सोचते थे कि हम इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, या इसको हम जल्दी से कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन कोर प्लस एक ऐसी चीज है जिसको जल्दी यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी। मुझे लगता है कि कोर प्लस से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हो रही है इस टाइम पर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको मतलब हम सबको, मैं और आप, हम सभी लोग प्रीटी मच सेम पोजीशन में, हम सब एक लीडरशिप पोजीशन में जहां पर हम इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोर प्लस का, वो है पर्सनल प्रोडक्टिविटी। हमें अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचना भी पड़ेगा और उसे बढ़ाना भी पड़ेगा। जब वो बढ़ेगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पर्सनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि मैं कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ। अगर मैं 100 पीवी जनरेट कर रहा हूँ तो मैं कोर प्लस का फायदा नहीं उठा सकता। मैं क्या अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहा हूँ, क्या मैं अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा हूँ, दैट विल डिटरमिन कि मैं कोर प्लस से कितना फायदा ले पा रहा हूँ और कितना जल्दी ले पा रहा हूँ। जब हम लोगों को जल्दी प्रॉफिटेबल करते हैं तो उनका रिटेंशन भी बढ़ता है, क्योंकि जब आदमी प्रॉफिटेबिलिटी देखता है तो वो नेगेटिव को भी ज़्यादा सहन कर सकता है, वो फेलियर को भी ज़्यादा सहन कर सकता है, वो थोड़े सा शॉर्ट टर्म से मिड टर्म से लॉन्ग टर्म की सोच भी अपनी बढ़ा सकता है। जो दूसरा पार्ट कोर प्लस प्रमोट करता है वो है स्ट्रक्चर। और हम हमेशा से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही एमवे ने स्ट्रक्चर पे पैसा डाला, यानी कि अगर आपके 3 सॉलिड लेग्स हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से जंप कर जाती है। इनफैक्ट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं कि जो 15% सही स्ट्रक्चर से जा रहे हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी 40 से 50 हज़ार रुपए है, जो कि पहले कभी नहीं था। एक प्लैटिनम की इनकम 40-50 हज़ार रुपए थी, अब वो 15% पे अगर आ सकती है। लेकिन वो इस पे डिपेंडेंट है कि आप क्या वो स्ट्रक्चर फिक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप नहीं होने वाला है। तो जो पैसा है वो अवेलेबल है, लेकिन हमें हाथ बढ़ाकर लेने की जरूरत है, वो अपने आप चल के हमारे पास नहीं आ रहा है। दैट इज द बिग डिफरेंस इन कोर प्लस। मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा फॉर दैट टू कम टू अस। और जो तीसरी चीज है वो जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, और मेरे तरह के सभी लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, वो है सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि किसी को भी ऐसा बिजनेस पसंद नहीं है जो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है। हम सब सस्टेनेबल इनकम चाहते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा पीस ऑफ माइंड आता है, वहीं से हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। और जब हम हाई प्रोडक्टिविटी और अच्छे स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अपने आप सस्टेनेबल हो जाता है। जब हमें पता है कि कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे शॉर्ट टर्म पैसा कमाया जा सकता है, उसको करने का एक ही तरीका है कि हम सही तरीके से उसको करें, तभी वो पैसा ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आ सकता है। तो आपकी बिजनेस बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को बदलना ही पड़ेगा, देयर इज जस्ट नो अदर वे। और इसीलिए एनीबडी एट माय लेवल जिसकी अंडरस्टैंडिंग इस बिजनेस की डीपर है इतने सालों में, वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट कोर प्लस। तो अगर आपने अभी तक कोर प्लस को नहीं समझा है, आपको थोड़ा सा डीपली समझने की शायद जरूरत है। मैं कोर प्लस में सिर्फ कोर प्लस को नहीं जोड़ता हूँ। जो नया एंट्री मॉडल है
पर्सनली आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो। ऐसा देखने में लगता है कि इट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टिव, अरे ये तो बहुत स्लो कर देगा चीज़ों को, अरे ये तो चीज़ों को अटका देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये परफेक्टली मैच करता है कोर प्लस की फिलॉसफी के साथ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने मैकडोनल्ड खोला, आपका बर्गर बिकता नहीं है, लेकिन आपने फ्रेंचाइज बेचना शुरू कर दिया। आपने बहुत सारे फ्रेंचाइज बेच दिए, वो भी कोई बर्गर नहीं बेचते हैं। अब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मैकडोनल्ड का जिसमें कोई कोई बर्गर नहीं बेचता है, पर हर एक आदमी सोचता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। इट जस्ट कैन नॉट वर्क। आपका मैकडोनल्ड पहले प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, फिर आपके प्रॉफिट को देखकर दूसरे लोग आपसे मैकडोनल्ड खरीदना चाहेंगे। दैट इज द राइट माइंडसेट टू हैव अ लार्ज बिजनेस। तो जो हमारा करंट एंट्री मॉडल है वो उसको सपोर्ट करता है। अगर हम पहले सही तरीके का एडीआर क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, जो कस्टमर क्रिएट कर सकता है, तभी हम उसको एडीएस बना सकते हैं जिससे कि वो दूसरों को सिखा सके। तो इन ऑल दीज ईयर्स, मैं बिजनेस में, मुझे 21 साल हो गए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव नेवर एवर बीन सो एक्साइटेड एज नाउ। मैं कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं रहे हम लोग इस बिजनेस के बारे में जितने हम आज हैं, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है ये जो करंट चेंजेस आए हैं वो। राइट, टू यू। राइट, थैंक यू अंकुर। आई थिंक दैट वाज क्वाइट इंसाइटफुल अंकुर जी, आपने जो बताया, बिकॉज ट्रस्ट मी, मेरे को आपकी मैकडॉनल्ड्स वाली एग्जांपल बहुत अच्छी लगी। बिकॉज जब तक आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, बिजनेस बढ़ाए तो जा रहे हैं, बट बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, हर एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड को प्लस में जो सबसे बड़ी चीज, ऑफकोर्स आपने 3 चीज बताया, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, बट कंसिस्टेंसी जो हम बात कर रहे हैं, और ये सारा रिलेटेड है एक दूसरे से। एंड आई थिंक पूरा बिजनेस ऐसा है, आप एक चीज को अलग से नहीं देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी कनेक्ट द डॉट्स। एंट्री मॉडल, और इनको अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे और एक चीज को देखेंगे, तो आई थिंक तो टाइम टू सक्सेस जो है, इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर, यू नो। So it's very important that you make a very strong business looking at everything. So very insightful. I'm not able to hear Arijit. If Yes, everybody same here, else, same here. Arijit, we were not able to hear you. All right. I hope I'm being. Yeah, now we can hear you, Arijit. So you have to repeat the question. Sure. I'm sorry about that. So what I'm saying is कि सुमित जी, मैं आपसे, थैंक यू देवाशीष सर। वेल सुमित, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम अभी कोर प्लस के बारे में बात कर रहे थे और एक कंसिस्टेंट बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। और जैसे हम जानते हैं कि यू हैव अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव, दैट यू बिल्ड ओवर द इयर्स। और इतना ही नहीं, आई एम श्योर, जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं और यू आर लुकिंग एट इवन बिगर बिजनेस अहेड, देयर मस्ट बी सर्टेन थिंग्स जिसके ऊपर आप काम करते हैं। तो वो कौन सी कोर वैल्यूज है या कौन से कल्चर जो आप डेवलप करते हैं आपके टीम में, जो आपकी इतनी अनशेकेबल फाउंडेशन बनाती है और बनाएगी आगे जब आप 10x ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं? That's a very good question, Arijit, and I'm glad you asked this question because it's worth asking. Because बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जो है ना शुरू में सोचते हैं कि बस फटाफट टीम बन जाए and let me get some success and then I'll think about the finer stuff later on. But that finer stuff actually has to be thought of in the very beginning. और जब हम 10x की बात कर रहे हैं, 10x doesn't literally mean 10 times growth. It just means exponential growth. Because if we are prepared for exponential growth in our team, तो हम लोग जो है उसके स्टेप्स शुरू में लेना शुरू कर देंगे। बिकॉज मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी जिसमें बिल गेट्स से सवाल पूछा गया था कि भाई इफ यू हैड टू रीबिल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑल ओवर अगेन, तो ऐसी क्या चीज है जो आप दोबारा करेंगे, मतलब व्हाट वुड यू डू राइट इफ यू हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। एंड वन ऑफ द थिंग्स ही सेड वाज दैट हम लोग जब शुरू में कंपनी जब लोगों ने शुरू करी तो कंपनी इतनी छोटी सी थी और हम लोग कितना वी वर जस्ट सो कॉट अप इन
just surviving कि हम लोगों ने कंपनी की कोर वैल्यूज पे कभी ध्यान नहीं दिया. So if I was to start Microsoft all over again, I would establish the core values of what my company stands and what my culture is, and I would probably write it down and put it on a wall somewhere. So जो एमवे बिजनेस है वो भी कुछ ऐसे ही है. हम सब लोग जो है ना पैसे के लिए आते हैं और जैसे ही चेक करना शुरू होता है ये बिजनेस जो है हमारे को समझ में आने लगता है, दिमाग में घुस जाता है और फिर धीमे धीमे दिमाग से इट कम्स डाउन टू द हार्ट. और जब ये दिल में उतरता है उसके बाद इट बिकम्स लाइक अ कॉज, एंड दैट्स व्हेन द बिजनेस स्टार्ट्स ग्रोइंग बिग टाइम. And but in order to make the business grow big time, we have to establish some core values very early on in our team, because the core values are very necessary to shape your team's culture. और वो culture जो है वही चीज़ है जो आपके टीम के लोगों को इंस्पायर करेगी. बिकॉज बहुत सी बार मुझे सुनने में आता है कि सर मेरे टीम में लोग तो आ गए लेकिन लोग कुछ कर नहीं रहे, लोगों को मोटिवेट कैसे करूं, लोगों को इंस्पायर कैसे करूं. So that just makes me understand that the team has not set the right culture, because टीम में जब लोग आते हैं सब आते तो अपने अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स एंड गोल्स के लिए हैं, बट धीमे धीमे उनको रियलाइज होता है कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ लार्जर पर्पस, बिकॉज Amway, I believe, and I may be wrong, but I believe that Amway is a force for good. Ultimately, Amway is all about making this world a better place through our amazing products and our amazing business opportunity. So there are a lot of core values and I'm sure all the teams are practicing, but जो मेरे दिमाग में आती हैं right now, which are necessary for growing exponentially, are, I believe, loyalty. Loyalty to our products, loyalty to our team. और मुझे लगता है कि loyalty जो है ना, it cannot be demanded from our team members कि तुम loyal हो मेरे products के लिए या तुम loyal हो हमारी team के लिए. No. But loyalty has to be earned by the leaders with their serving attitude. For example, when your team comes in contact with you and they see you talking, breathing, living the products instead of just giving very, very anal presentations. Formula तो रटा हुआ है आपको कि मतलब वो presentation कैसे करनी है, but somehow they don't see you being a product of the product. So what happens is this कि कहीं ना कहीं उनका faith जो है वो टगमगा जाता है. साथ साथ in order to develop the loyalty in the team, you have to make sure that you have a serving attitude towards your team. Make sure कि आपकी टीम जो है आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, not just in terms of helping them make extra money, but also helping them to change their lives and impacting people's lives. That's very, very important, I believe. Adding value in people's life is very important. We have to actually keep our team's interest over others. प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें टीम को ग्रो करने के लिए, ना कि लोगों का इस्तेमाल करें टीम में सिर्फ प्रोडक्ट्स का टर्नओवर ग्रो करने के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए. आई एम श्योर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कोर वैल्यू. भरोसा कंपनी में, in spite of all the ups and downs, you have already seen what kind of challenges we have gone through, but हमें पूरा ट्रस्ट है कंपनी पे. Trust in your upline, that's so important, so vital. मैं क्या बताऊं उसके बारे में. Probably is going to be one of the most important core values if you want to build a big business. I built that trust and I was blessed with an upline mentor who was big in the business. और मैं उन पे इतना भरोसा करता था कि when I used to go through my valleys in the business, जब मैं डाउन फील करता था इस बिजनेस में और जब भी मैं उनसे बात करता था, he used to always just tell me only one thing, you guys are going to have a very big business one day. और मैं उनकी बातों पे विश्वास कर लेता because I trusted in him. और मुझे लगता भी था कि he is such an honest person, वो मुझे झूठ क्यों बोलेंगे. He probably sees something in me जो कि मैं अपने में नहीं देख रहा हूँ. If all of you guys here can develop that kind of a trust in your upline, that's probably going to be very, very important. Find an active growing upline, find a mentor and trust them. Also, India is a very diverse country, and anyone here who is thinking कि मैं अपना Amway business और अपनी Amway team जो है वो केवल एक geographical area में या एक particular socio-economic group में या एक strata of society में build कर दूंगा, they are probably fooling themselves because आपका business आपसे दूर भागेगा ही भागेगा, especially now when we are operating in a mostly online environment.
So making sure that we accept diversity is very, very important. मेरे को जो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज है उनको जेंडर फ्लूइड भी रखना पड़ेगा, और साथ साथ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि अगर मेरी टीम में एक साउथ बॉम्बे की सिंगल मदर है, डाइवर्सी है, शी ऑल्सो फील्स एज comfortable in my team's activities as a middle class couple living in Damoh in Madhya Pradesh, because we have to make sure that everybody feels welcome, because this is what we loved about Amway, that Amway business does not make any distinction based on your education status, your political affiliation, aap kis religion ke hain. So we have to accept diversity. We have to make sure that our teamwork is very, very transparent. Our teamwork should be like an open book, Every time when we work, we have a core group of people, as all leaders here should, where we have a mastermind alliance of people. And then we always keep everything very, very fair. There is no discrimination. There is appreciation, recognition all the time, making sure that जो बाहर की दुनिया में पॉलिटिक्स डायनेमिक्स होती है ग्रुप्स में, टीम्स में, वो यहाँ बिल्कुल ना हो. डेफिनेटली नो नेपोटिज्म, यहाँ पर कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है, विच इज़ वेरी वेरी विच इज़ समथिंग दैट यंग पीपल लव, एंड दैट शुड बी ऑल पार्ट ऑफ योर कोर वैल्यूज. बी very fair. Amway is a very fair, very transparent company. That's what we love about it, So that same core value you have to bring into your teamwork. That's very important if you want to grow exponentially. Family values. I see a lot of young people right now who are building the Amway business because they love the family culture here. हमारी जो young generation है, they are still trying to balance the modern outlook versus India's traditional values. And they love the fact कि यहाँ पर parents भी business build कर सकते हैं, बच्चे भी business build कर सकते हैं. And we always take every opportunity, and everyone here does too, of recognizing any situation जहाँ पर parents ने भी pin achieve किया है और उनके बच्चों ने भी कोई significant pin achieve किया है. And that has to be recognized, and fun is very important. Making sure that all your activities, teams activities are all good, wholesome fun. Making sure that कोई भी आपका challenge accepted group night है, उसमें you are always having fun. So जो like-minded लोग साथ में आके when they have fun together ना, then many times people just want to be part of your team. Amway business में खास बात क्या है कि people join people first and join the company later. बाहर की दुनिया में जब लोग जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहां पर they join companies first and colleagues या लोगों की परवाह नहीं करते हैं. They don't care about the company who works with them. They mostly join the company. But यहाँ पर उल्टा है. So when your team has a culture which is including all these values, so automatically क्या होगा कि जो भी आप एक्टिविटी करोगे उस पर लोगों का ब्लाइंड फेथ हो जाएगा, उसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर आप डिक्लेयर करोगे मेरे टीम में कि आई हैव टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेडिक्टेबल पीवी बाय द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, एमवे का ऑफर उस वक्त तक आया नहीं है, so that activity itself will become acceptable and everybody will start doing it because सब लोग कर रहे हैं. Any challenge that you set in your team for the growth of your team will be accepted by everybody. So I believe that these are some of the things which are very, very important, and I believe that ये टीम की जो core values और culture इसको शुरू में ही आप set कर लें, उतना फायदे में आप रहेंगे. Otherwise what will happen is this कि लोग जो है टीम में confused काम करेंगे, and that will just somehow break the team apart, and we will not be able to grow exponentially. Thank you. Right, sir. I think well said, and I think जब आपके पास इतनी बड़ी groups होती है, and inclusiveness becomes very important. How do you include so many people coming from, like you said, the example from Mumbai to Damoh? I think that's correct. Or किस तरह से, it's amazing how you are able to, connect to so many people from different backgrounds, from different cities, and a culture like we have, where people come from very different backgrounds. So thank you so much for bringing in that perspective, Sumitji, because I'm sure a lot of people have this thing in their mind, how do we handle such diversities, basically. So thank you so much for that. और इसी चीज को हम आगे लेके जाएंगे. तो हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटीज के बारे में
और हम बात कर रहे थे कि एक देश जहाँ पे इतने सारे कल्चर्स है, और हाउ डू यू हैंडल, ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी चीज बात की, वन ऑफ द थिंग दैट वी स्पोक अबाउट दैट। मेरा अगला सवाल जो है गोज टू प्रवीण जी, आपके लिए है। सो प्रवीण जी, आपका you have a big group that you handle, which is in Gujarat and outside Gujarat also. And I'm sure जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं over the period of time, और आगे भी जब आप करेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नए डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे ना, 100,000 50,000 अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि ये नया चीज आ गया, ये कर लेते हैं, ये आ गया है, या फिर ऐसी काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि हाउ डू यू फोकस योर एनर्जी, आप आपकी एनर्जी को कैसे फोकस करते हैं जिससे कि आपका जो बिजनेस का हेल्थ और सक्सेस है वो सही रहेगा। सो हाउ डू यू मैनेज दिस? यस Arjit ji, thank you very much for giving me a chance, and thanks to all the I hope जितने भी पैनलिस्ट हैं, थैंक यू अंकुर, बहुत ही बढ़िया आपसे सुनने को मौका मिला, डेफिनेटली मुझे मौका मिला, और सुमित जी आपसे भी। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन अगर मेरे लिए अगर कहा जाए तो हाउ डू यू फोकस, मतलब अरजीत जी ने बताया कि भैया बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें थी जिसके कारण आप फोकस कर पाए। तो नॉट ओनली आई थिंक किसी भी जगह पे सफल होने के लिए आपका फोकस, जिसको हम लोग कहते हैं टनल विजन, होना बहुत जरूरी है। और टनल विजन और टनल फोकस कब रहेगा? जब हमें फेथ रहेगा उस बिजनेस के ऊपर, तब शायद। मे भी अगर मैं अपनी बात करूँ तो बीइंग इंजीनियर, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, और एक छोटे से एरिया से जब मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था, शायद उतना भरोसा उस एरिया के कारण, या फिर मुझे जॉब के साथ साथ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे पता नहीं था, लेकिन कैसे हमें भरोसा आया था। शायद आज आप पहली बार हो यहाँ पे, या फिर नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, शायद सुमित जी और अंकुर जी को देखने के बाद ज्यादा भरोसा आ जाना चाहिए। मुझे आया था, उनको कभी देखा था मैंने, सुमित जी को, सब बिजनेस शुरू किए थे बीइंग IITians, राइट। अंकुर जी और सुमित जी IIT से पास आउट है। अंकुर ने अपने बताया शायद वो चीफ डिजाइन कर रहे थे, अगर सुमित जी ने बताया वो US गए थे और US से वापस यहाँ पे आए। तो आई होप ये चीज इनफ है हमें अपने इस बिजनेस के ऊपर फेथ ले आने के लिए। वैसे हम लोग शुरुआत में ऐसे सब लीडर्स से फेथ गेन करते थे, यार ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है यार, लेकिन अगर बिजनेस को हमने बड़ा कर लिया तो मुझे क्या पता है दोस्त, हर सफलता के पीछे कुछ अपने उसूल होते हैं, राइट। और मैं अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहूँ तो मैंने छोटे से एरिया से, रूरल बैकग्राउंड से शुरू किया था बिजनेस, जहां पे मैं जॉब किया करता था, एक छोटा एरिया था। कह सकते हैं दोस्त डेफिनेटली टनल विजन, और कैसे हम लोग आगे गए तो शुरुआत से पता इतना चल गया था कि बिजनेस बहुत बड़ा है। अगर सुमित जी को आपने देखा है US छोड़ के इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ गए, तो बिजनेस तो बहुत बड़ा होना चाहिए। शुरुआत में अगर पता नहीं है तो स्टिल इतना तो पता चल जाएगा आपको। मुझे पता चल गया था इस बिजनेस से बहुत कुछ हासिल करना है, ड्रीमर पहले से ही थे, कुछ हासिल करना है, लेकिन उस हासिल करने के लिए मुझे अपना कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म विजन हमारा बहुत बड़ा था। इस बिजनेस के अंदर आने के बाद पता चला था इसमें आप डायमंड जा सकते हो, EDC जा सकते हो, क्राउन एम्बेसडर जा सकते हो। और मैं और मीनाक्षी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, मेरी वाइफ मीनाक्षी और मैं, तो इतना पता चला था कि क्राउन एम्बेसडर और बियॉन्ड दैट जाएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज सफल होने के लिए जो हमें चाहिए थी, छोटी छोटी जगहों पर सफल होना, जिससे कारण मोमेंटम बिल्ड हो। एरिया छोटा था, अगर मैं अपनी सब प्रोडक्ट के ऊपर अगर मास्टरी करने जाता तो शायद नहीं हो पाती। हर तरह से मैं बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाता, लेकिन छोटी जगह से मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे अगर मैं अपनी इनिशियल डेज की बात करूँ तो मुझे एक आपसा तरह की छोटी सी प्रोडक्ट थी। अभी हमारे देवाशीष जी ने बताया यहाँ पे 170 प्लस प्रोडक्ट है, उस टाइम कम थी, लेकिन वो कम प्रोडक्ट में भी चलने वाली हमारे लिए एक ही प्रोडक्ट थी, दैट वाज आपसा। उसके कारण एक मोमेंटम बिल्ड करने की जरूरत थी, तो उसको ऊपर हमने फोकस किया, क्योंकि वो मेरे बस की बात थी। रूरल एरिया था, तो वहां पे उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली लोगों को बता के, लोगों को बिजनेस में ले आके उनको पैसा कमाना सिखाया, फिर एक मोमेंटम बिल्ड हुआ। तो मतलब इनिशियल मोमेंटम बिल्ड जब होता है तो बड़ी चीजें फिर हो जाती है ऑटोमेटिक। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो, उसको बेहतरीन करना शुरू कर दीजिए, जो हमने किया था, राइट। दूसरी चीज मुझे इतना पता है, तो कहते हैं कि स्क्विरल सिंड्रोम, वी शुड अवॉइड स्क्विरल सिंड्रोम, राइट। गिलहरी आती है, शायद उसको आपने देखा होगा कि आपने अगर उसको दाने डाल दिए ना, तो एक दाना वो पकड़ के रखेगी, वो खाना शुरू करती है, देखती है दूसरा दाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो छोड़ के भाग के वो दाने को पकड़ने जाएगी। वहां पे खाना शुरू करती, देखती है तीसरा दाना वहां पे पड़ा है, वो छोड़ के वहां पे भागना शुरू कर देगी। शायद स्क्विरल सिंड्रोम जो है ना, वो ज्यादातर लोगों को कहीं पे भी, नॉट ओनली इन एमवे, लेकिन लाइफ में लोगों को आगे अगर रुक जाते हैं तो शायद ये सिंड्रोम के वो शिकार है, गिलहरी वाला सिंड्रोम। हम लोग अपने आप को बचा पाए, थैंक गॉड, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, आई वाज वर्किंग एज ए क्लास 1 ऑफिसर, मीनाक्षी टीचर थी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन हमें ये पता था कि अगर हमारा अल्टीमेट जो हमारा ड्रीम साइज जो भी था, अगर कहीं पे फुलफिल होने वाला है, मतलब यहीं से होने वाला है। आते हैं ना छोटे मोटे, कुछ लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते करते लोग देखते हैं और कोई बिजनेस आया है क्या, गिलहरी सिंड्रोम,
राइट? किसी और टीम क्या कर रही है उसकी खिड़कियों में जाके झांकते हैं, गिलहरी सिंड्रोम। लोग पूरे दिन टाइम निकालते रहते किसी और की यूट्यूब में जाके, किसी और के इंस्टाग्राम को फॉलो करते करते। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो सिर्फ, राइट? वी नीड टू वर्क हार्ड, दैट वाज द मेन गोल जब हमने बिजनेस को शुरू किया था। तो सेकंड थिंग, जस्ट अवॉइड गिलहरी सिंड्रोम, राइट? और थर्ड चीज मुझे इतना पता है, वी नीड टू बी, बहुत ही फोकस होना था और हमारा डिस्ट्रैक्शन जो भी हो सकता था उससे अपने आप को बचाना था। शायद कह सकते हैं दोस्त, मुझे इतना पता है दोस्त, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है, कहीं पे भी है, इनफैक्ट नॉट ओनली ऑन द स्क्रीन, लेकिन उनके पास एबंडेंट मतलब बहुत पावर है उनके अंदर। अगर वो चाहे और उसको सही जगह पे फोकस करवा के अगर कुछ गोल्स को हासिल करने की कोशिश करे तो यू कैन, मतलब आप मिरेकल कर सकते हो। जैसे कहते हैं सूर्य के पास बहुत जबरदस्त ताकत है, वो किसी भी चीज को मतलब जला सकता है, राइट? लेकिन कब? तो जब आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो तब। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है दोस्त, मतलब उनके पूरे जो रेज है उसको आप कंसंट्रेट करके एक फोकल लेंथ सेट करके एक पॉइंट बनाते हो जहां पे आइडेंटिफाई किया आपने, और उसी जगह पे पकड़ के रखोगे तो कुछ टाइम के बाद वो आग जलना शुरू हो जाएगी वहां पे। शायद यही होता है। डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं दोस्त इनिशियल लेवल पे, हमारे ताकत बहुत थी हमारे अंदर, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्टेड हो गए होते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचते। ताकत बहुत थी हमारे अंदर, तो उसको हम लोगों ने डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं इनिशियल लेवल में। चाचा के घर पे शादी है, अगर फोई के घर पे शादी है, अगर मेरे दोस्त की पार्टी है, मूवीज में जाना, इनिशियल लेवल पे यहाँ पे हम लोगों ने अपने आप को बचाया था। दैट वाज ट्रू, राइट? ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस थे, लेकिन बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शन क्या कह सकते हैं दोस्त, कुछ पॉजिटिव भी, कुछ और बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गया, आप कर रहे हो बिजनेस, राइट? और आपको लगा अरे यार वहां बहुत पैसा है, कमाओ, फर्क नहीं पड़ता, कमाओ वहां पे। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म और जो मिलना है मुझे यहाँ पे वो शायद वहां पे नहीं मिलने वाला था। दैट वाज ट्रू विद मी, मुझे पता था इतना। कुछ चैलेंजेस आ सकती है, लेकिन मुझे इस बिजनेस में उस चैलेंजेस को मेरे एमवे बिजनेस से बीच में नहीं आई। वो मैं अपनी बात करूं, 17-18 साल इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए हो गए, और हमें एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे एरिया में आई थी जब हमने बिजनेस शुरू किया था। रायोट्स, शायद आपने 2002 के रायोट्स को शायद आपको याद हो, तो वो गोधरा हमारे एरिया से शुरू हुआ था। और उस रायोट्स में कुछ ऐसा भी हुआ था कि हमारे मीनाक्षी के पापा, मेरे फादर इन लॉ, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, ही वाज इन जेल, मतलब उनको जेल हुआ था। करीब 10-11 महीने के लिए हम उनके पीछे थे। उस टाइम हमारा बिजनेस कोलैप्स हो गया था, उस एरिया में बिजनेस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हमारा फोकस उनको हेल्प करते करते इस बिजनेस को बिल्ड करना था। मे बी बिजनेस ड्रॉप भी हुआ था, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हम लोग, और डेफिनेटली इतने फोकस होकर बिजनेस को बिल्ड किया था। करीब लगे थे हमें कुछ महीने बाउंस बैक करने के लिए, करीब 22-23 महीने लगे थे। मुझे आज भी याद है दोस्तों, वीवर मतलब इस बिजनेस के हिसाब से अगर आपको पिन लेवल का पता हो तो हम लोग गोल्ड गए थे, सिल्वर टू गोल्ड 23 महीने के बाद। लेकिन हम लोग 3 महीने के बाद वीवर प्लेटिनम, उसके 1 महीने के बाद हम लोग फाउंडर्स प्लेटिनम रूबी थे, और उसके 3 महीने के बाद हम लोग फाउंडर्स प्लेटिनम थे। मतलब जनवरी से लेके अगस्त तक वी मूव टू गोल्ड टू प्लेटिनम टू रूबी टू फाउंडर्स प्लेटिनम। उसके 2 महीने बाद, 2 साल बाद वीवर एमराल्ड्स, और उसके 3 साल बाद वीवर डायमंड्स। यही कहना चाहेंगे दोस्त, मतलब कुछ ये 3 चीजें जो हमारे अंदर होनी चाहिए शायद इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करने के लिए। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं दोस्त, आज आप इस स्पीकर्स को सुनकर, जो पैनलिस्ट है, मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अंकुर जी और सुमित जी की क्वालिफिकेशन मुझे बहुत मोटिवेट करती है, क्योंकि मैं वो कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया था। लेकिन थैंक गॉड आज उनके साथ हम लोग पैनल में यहाँ पे। यू कैन ड्रीम ऑफ दैट, राइट? थैंक यू अरिजीत जी, मजा आया। Thank you so much, प्रवीण जी। I think that was really inspiring, और मैं हमेशा ध्यान दूंगा जो स्क्विरल सिंड्रोम, इवन मेरे पर्सनल लाइफ में, कि कभी अगर ये स्क्विरल सिंड्रोम आ जाती है और मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, हाउ आई कैन कीप इट अहेड। So thanks so much for that, Praveen ji. That was really inspiring. Thank you, Ajit ji. Right, sir. Good. Okay, great. तो दोस्तों, हमने सुना प्रवीण जी से स्क्विरल सिंड्रोम के बारे में, अंकुर जी ने हमें एग्जाम्पल दिया मैकडॉनल्ड्स का, सुमित जी ने हमें बताया इंक्लूसिविटी के बारे में, देवाशीष जी ने हमारे साथ शेयर किया विजन के बारे में। दोस्तों, इन सबको सुनने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरिजीत जी, आज हम एमवे के इतने बड़े परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आज काफी खुश हूं। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और कहते हैं खुश रहना जीवन में जरूरी है, खुशी आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अरिजीत जी, आप कैसा महसूस करते हैं? Absolutely, happiness is very important, और मेरा हैप्पीनेस इस महीने थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज हर महीने कुछ सामान मेरे घर पे आती, कुछ नहीं काफी सामान आती है जो एमवे से आती है, और इस बार जो है हैप्पीनेस थोड़ी ज्यादा हो गई है,
certain percentage, because जब मैं इस बार सामान लेने गया तो 10,000 के पास 2400 रुपए के सामान मुझे मुफ्त मिले. I think that was really exciting, you know, a good offer that we have. और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी खत्म ही हो रहा है, मतलब समय इसका बहुत लिमिटेड है. बिल्कुल ठीक कहा अरिजीत जी आपने. और दोस्तों बहुत ही चंद दिन बाकी रह गए हैं इस ऑफर में. एडीआर और एडीएस के लिए ऑफर है. 12,400 डीएपी के एमवे प्रोडक्ट्स पे आपको मिलता है 2,400 डीएपी का डिस्काउंट. और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये खुशी 4 गुना और बढ़ जाती है क्योंकि ये ऑफर हमारे प्रेफर्ड कस्टमर्स के लिए भी है. जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रेफर्ड कस्टमर्स के लिए. जब आप एमवे के प्रोडक्ट खरीदते हैं 2,900 डीएपी के, तो आपको 400 डीएपी का डिस्काउंट मिलता है. तो दोस्तों चंद दिन बाकी रह गए हैं, जाइए और अपने ऑफर को ग्रैब करिए. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. सवालों का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे दोस्तों, और ये सवाल आप सबसे है, वो बड़ा परिवार एमवे का जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनसे ये सवाल है दोस्तों. इस सवाल को हम लॉन्च करना चाहते हैं एक पोल के जरिए. दोस्तों अब आपके सामने इस सवाल को पोल के जरिए लॉन्च किया जाएगा. आप अपनी उंगलियों को कायम रखिएगा उस पोल पे और दीजिएगा इसका सही जवाब. दोस्तों पोल को लॉन्च किया जा रहा है आपके लिए. आप देख पा रहे हैं सवाल. दोस्तों सवाल यह है कि एक एमवे डायरेक्ट रिटेलर और एक एमवे डायरेक्ट सेलर कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कितने तक कमा सकते हैं. दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है. अप टू 20%, अप टू 10%, 7% एंड 3%. दोस्तों इस पोल को हम अगले 15 सेकंड में स्टॉप करने वाले हैं. दोस्तों जल्दी कीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस पोल के रिजल्ट्स. दोस्तों बाकी रह गए हैं 8 सेकंड. जी दोस्तों आइएगा, उसका जवाब दीजिएगा. ओके